मीठी विच मिल जावणगे अपनी जान बचा ना सकदे मीठी विच मिल जावणगे दिया होगा दी सब करेंगे बंदे सारी दुनिया पे करेगी आबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी करेगी आबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी आने वाली पीढ़ी रब दी खबर पहुँचावेगी आने वाली पीढ़ी रब दी खबर पहुँचावेगी याद यहोवा दी सब करेंगे कंधे सारी दुनिया पे दसेगी सच्चाई बदली होना जो जमणगे दसेगी सच्चाई बदली होना जो जमणगे होना उनके करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंदे होना उनके करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंदे याद यहोवा दी सब करेंगे कंधे सारी दुनिया में दिन दिलदार रचूना बनेंगे अरे पाक खुदावंदे. We will continue to worship in English that people, those cannot understand our own language or good. Maybe we can sing for them that they can understand what we are singing and what we are doing here. Me all my days I've been held in your hand. A moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing Just of the goodness of God. You are so good. I love you, So good, and your mercies endures forever. you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have known the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes Lord, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Our breath that I take, Your goodness is running out, it's running after me, yes Father. Your
Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Praise God. Hallelujah. Lord, we worship you. And all my life you have been With all my faithful. heart, with all my soul, we sing for And all you. my life you have been so, Yes, Lord. so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Praise God. Hallelujah. Your goodness never fails. Your mercy never fails, Lord. And all Hallelujah. my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord, we Jesus. bless your Thank name. you, Father. O my soul, bless the Lord, O my soul. Worship his holy name. Lord, you promised that where one or two or four or three gather, I am there. Lord, you are here. We can feel and we can see your presence here. Your mercy never fails. Lord, we worship you, we adore you with all our heart, with all our soul. Thank you. Thank you, you are here. Thank you for your presence. We shall continue to worship the Lord. Hallelujah. Praise God. Let's everybody start praying. The Lord is here. His presence we can feel is moving here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, I will worship you with thanksgiving. Yes, Lord. Yes. You blessed me so much. And I will not stop myself to say thank you, Lord Jesus. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के Yes, Lord, give me that much that I cannot measure. से Yes, Lord, तूने मुझे I cannot account my blessings. से ज़्यादा Yes, Lord, मुझे give me more than enough. भारी हो Why not I say thank you, Lord? मांगने से ज़्यादा मिला मुझे Lord, you give me that I never say
Yes, you bless me more than enough. के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि, यस, स्तुति धन्यवाद। मैं लाखों करोड़ों बार खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। जो मैंने मांगा नहीं वो तूने दिया, तूने मेरे मांगने से ज्यादा मुझे दिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र हो। तू इस योग्य है, तू इस लायक है कि तेरी तारीफ की जाए, तुझे सिजदा किया जाए। तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। यहोवा के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यहोवा के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तू भला खुदा है, तू इज्जत और ताज़ीम के लायक है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसकी हम बड़ाई करें, जिसकी शुक्रगुजारी करें, जिसकी तारीफ करें। आसमान के तले और जमीन के ऊपर सिर्फ एक नाम है, वो यीशु नाम है। आए उसको सिजदा करें। लेट्स वर्शिप हिम, अडोर हिम। डू वी हैव अनदर सॉन्ग और नो? ओके, सो मे बी वी कैन कंटिन्यू। Yes. Hallelujah. Praise God. Praise God. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदा, तू भला खुदा है। The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoken into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Could imagine so great a mercy, what heart can fathom
such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings holds me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Yes, Lord, you are my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Everybody. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. That's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. हालेलुया। खुदावंद हमारी जिंदा उम्मीद है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत वर्ष के लिए जो हमने खुदावंद के हुजूर में गुजरानी है। जिस तरह खुदावंद इस्राएल की प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता था, मेरा ईमान है कि हमारे होठों की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर बखूर की मानी पहुंची है।
अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुने जो जिंदगी की रोटी है। आए हम अपने दिलों को तैयार करें। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं गीता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना करें वर्ड ऑफ गॉड के लिए। प्लीज कम फॉरवर्ड। And before Geeta pray, so I would invite Vanshika to read a verse for us. Yes. Yes, take it. Yes. This is Psalm 37, verse 4 and 5. 37. 37, I said 37. Okay. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to Lord, trust in Him, and He will do this. Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. I will read my own. Yes, yes. So we look up. परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नामद्वारा। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिय परमेश्वर, आज तपाईँको इच्छा अनि योजनाद्वारा पिता यस ठाउँमा तपाईँले यो मौका दिनुभयो पिता। सारा हृदय प्राण आत्मा शरीरले तपाईँलाई आधार महिमा प्रशंसा चढाउँछु पिता। आज शनिबारको दिन, विश्रामको दिन, महिनाको दिन पिता तपाईँको प्यासा छोराछोरी एक ठाउँमा ल्याउनु भयो, एकचोट गराउनु भयो। यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद पिता परमेश्वर यशुको नाममा। होली स्पिरिट यु आर हियर। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर, र तपाईँले हाम्रो लागि के खाँचो छ पिता, कुन वचनको खाँचो छ। यु विल स्पिक थ्रु साजिया माउथ एन्ड प्लिज गड प्रोभाइड्स अस अल थिङ्स द्याट विच निड आवर हार्ट। परमेश्वर पिता हाम्रो आत्माको लागि के जरुरी छ, र तपाईँ उपस्थिति भइकन हरेक शैतान र बन्धनहरूलाई तपाईँले तोडिकन पिता परमेश्वर सहायता गर्नु भएको होस् पिता परमेश्वर येशूको नाममा। पिता माग्न त के माग्नुहुन्छ पिता, माग्नुभन्दा पहिले नै पिता तपाईँले हरेक कुरा यस्तो मसीहको नाममा दिनुभएको छ। माग्छु पिता त्यही पनि हजुरको जीवित पुत्र यस्तो मसीह भएर माग्छु। आमेन। Amen. Amen. Thank you. So Geeta is from Nepal, so she can understand Hindi, but she cannot speak fluently when she prayed, and she prayed in Nepali language. So we are here from 5 nationalities: India, Pakistan, Cameroon, Nigeria, and Nepal, and Bahrain. So all glory to the Lord. So we are here. So this is our worship service under the banner Bless the Nations. So that's why we are here, the nations, from the nations. So I would like to tell you what Bless the Nations is. Bless the Nations is a ministry serving the Lord since 2005. So our goal is to motivate church for personal prayer. So this is our motive. So I hope you will be blessed. So our main language is Hindi and Urdu, but here Sister Noreen and Brother Joshua is here to translate for you, and I hope you will feel included. खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस वक्त के लिए, और हम जो हैं वो आज 35 डेज या 34 डेज से हम प्रेयर में हैं, नाइट प्रेयर में, और हम हर रोज एक नए टॉपिक को, एक नई मोटिवेशन को, ताकि हमारी जो फेथ को स्ट्रेंथन करे, हमारी प्रेयर लाइफ को जो है वो हमें स्ट्रेंथन करे, ताकि हम कुछ अद्भुत और कुछ ऐसा सीखें कि हम खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें।
उसकी प्रेजेंस में बैठ सके। आज भी एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को डिस्क्लोज करूं, आस्क द पर्सन नेक्स्ट टू यू, अपने साथ वाले व्यक्ति से, अपने साथ वाले साथी से कहिए, हैव फेथ इन गॉड। खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। हमने Psalm 37 वर्स 4 और 5 में देखा, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल डू दिस। खुदावन में मसरूर रहे तो वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वो सब कुछ करेगा। मेरे साथ देखिए रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। Romans chapter 1 verse 16 to 17, 2 verses हैं। For I am not ashamed, I think, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। द राइचस विल लिव बाय फेथ। एक रास्तबाज और एक ईमानदार को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज फेथ है, ईमान है, विश्वास है। और हम इसी पर ही अपने आप को ये कहते हैं कि आई एम अ क्रिश्चियन बिलीवर, या मैं ईमानदार हूं, और हम इसी की बेस पर कहते हैं। यू नो समटाइम्स क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए खुदा पर भरोसा रखते हैं, वो हमें मिल जाती हैं, और फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि खुदा हमारे लिए कुछ अद्भुत और कुछ नया और कुछ और बड़ा करेगा। हम इन स्टेप्स पे आगे बढ़ते जाते हैं। छोटी सी बात को पा लिया, फिर एक बड़ी बात की तरफ हम चल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। जैसे मैं कह रही हूं, मैं कह रहा हूं, खुदा मुझे गाड़ी चाहिए तो मैंने गाड़ी मिल जाए, खुदा मुझे अच्छी जॉब चाहिए और मुझे जॉब मिल जाए, खुदा मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे इजी लाइफ चाहिए, मुझे हर एक चीज जो है वो मुझे वेल टू डू में होना चाहिए। और अगर खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा कर रहा है तो हम ये सोचने लगते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होता है, खुदा जैसा मैं चाहती हूं वैसा कर रहा है। दिस इज ट्रू। एक लेप्रोसी को, एक कोढ़ी को हम यीशु के पास आकर ये को पूछता है और कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे साफ पाक कर सकता है। इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक मी क्लीन। अगर तू चाहे तो खुदावंद मसीह ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। खुदा हमारी चाहने के मुताबिक काम करता है, दिस इज ट्रू। लेकिन इस जमीन पर वही कुछ होता है मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो खुदा चाहता है, वो नहीं कि जो मैं चाहती हूं। खुदा मुझे प्रोवाइड करता है बिकॉज ही इज यहोवा जैरे। वो मुहैया करता है
बट इट डजंट मीन कि वो मेरे ऑर्डर पर बैठा है। वो जो कुछ चाहता है वो करता है। और थ्रू फेथ वी कैन सी गॉड, हम खुदा को देख सकते हैं विश्वास की बेस पर। अब हम सोचेंगे कि हम कैसे खुदा को देख सकते हैं। लेट मी ब्रेक डाउन। हम खुदा पर विश्वास रखते हैं, वी बिलीव गॉड, ट्रस्ट इन हिम। हमने जैसा भी देखा कि छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होती है? वफादारी, लॉयल्टी। आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या जब हमें कुछ नहीं मिलता है, जो मैं कहती हूं, जो मैं कहता हूं, एज ए क्रिश्चियन बिलीवर, व्हाट इज माई एटीट्यूड? मेरा रवैया क्या है जब मुझे, जो मैं कहती हूं, मुझे नहीं मिलता? एक ईमानदार कैसा होना चाहिए? छोटी सी बातें हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। एक ईमानदार वो शख्स, वो व्यक्ति अपने आप को ईमानदार कह सकता है, या वो रास्तबाज लोगों की लिस्ट में तब आता है जब जिंदगी उसके लिए मुश्किल हो, क्राइसिस में वो घिरा हो, मुश्किलों का शिकार हो, खौफ हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फेलियर है, जिंदगी में सक्सेस नहीं है, उसको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे वो कह सके कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। वो ऐसा कुछ देख नहीं पा रहा, वो क्लियर पिक्चर को नहीं देख पा रहा कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी। उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हम यूसुफ की एग्जाम्पल को देखते हैं कि खुदा ने उसको बताया नहीं था कि तेरे भाई तुझे कुएं में डाल देंगे। अय्यूब को भी खुदा ने नहीं बताया था कि तेरे साथ ये शैतान करेगा, मैंने उसको परमिशन दी है। इनको नहीं पता था कि इनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब हम पर बहरान आते हैं, परेशानी आती है, दुख आती, तकलीफ आते हैं, फेलियर होता है, हम क्या सोचते हैं कि वी आर अलोन एंड वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वी कैन नॉट सी गॉड। बट इफ वी हैव फेथ एंड थ्रू फेथ वी कैन सी गॉड। अगर हम फेथ में बने हैं, विश्वास पर खड़े हैं, तो उसी में हम खुदा को, उसके कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देख सकते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और बहुत से लोग हैं जो जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, उनकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है, उनके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, उनके रास्ते चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट वेट अपॉन द लॉर्ड। वो खुदा का इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने रास्ते बदल देते हैं। अब हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 और 18 में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि मेरे फेथ का नेक्स्ट लेवल क्या है एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। हबक्कुक, इसका मतलब है एम्ब्रेस, यानी आप ईमान के ऐसे लेवल पर खड़े हैं कि जहां पे वो कहता है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ
पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मौशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा की कुव्वत, अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी कुव्वत है। एज ए क्रिश्चियन बिलीवर, कितनी बड़ी बात है कि मुझे मेरी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे फ्यूचर में कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ऐसे मुश्किल वक्त में भी खुदा पर ही भरोसा रखूंगी। हो सकता है इस वक्त हमारे फैसले इस किस्म के हैं, हम ज्यादातर हम में से दूसरे कंट्री से आए हैं। हम ये सोचते हैं कि इस कंट्री में शायद मैं आ तो गया हूं, मेरे लिए है क्या यहां पर। हो सकता है मैं इस वक्त चीजों को देख रहा हूं, मे बी द लैंग्वेज बैरियर, मेजर प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम है हमारे सामने। एंड समटाइम मे बी हम सोचते हैं कि शायद मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया है। लेकिन इससे पहले जब हमने इस कंट्री में आना था, हमने माइट भी फास्टिंग की हो, हमने बहुत सी प्रेयर की हो, हमने पास्टर्स को कहा हो प्लीज प्रे फॉर मी, आई वांट टू गो टू फिनलैंड। हो सकता है हमने बहुत से लोगों से कहा हो हमारे लिए प्रेयर करें, लेकिन जैसे ही हम आए, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके है। एक तो सर्दी बहुत है यहाँ पर, दूसरा लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, तीसरा वैसी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वी फील सो अलोन। कितने चैलेंजेस हैं, कितनी चीजों को हम फेस करते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं, खुदा आपको उस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर ले आया है, तो मान लीजिए कि इसमें खुदा की कोई मर्सी है। उसने आपके दिल में डाला, आपने बड़ी स्ट्रगल की, आपने बहुत कोशिश की, एंड नाउ यू आर हियर। खुदा ने आपको अलग कर दिया, सेपरेटेड फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर लव्ड वन। कितने लोगों को छोड़ा आपने, इधर कल्ले बैठे हैं। हाँ, उस बहन के तो बच्चे भी उधर ही हैं अभी। हाँ, वो बच्चों को कितना मिस करती होगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ मिलेगा, ये ईमान है। एकदम से आप उन तमाम लेवल्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक लेवल को क्रॉस करने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है, और उस एग्जाम के बाद हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। तो ये मान ले कि आपका एग्जाम है, आप अलोन हैं, स्पेंड योर टाइम विद गॉड। दिस इज अ वंडरफुल टाइम। ये बहुत अच्छा समय है कि आप खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें। फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और कुछ अद्भुत होगा। आप दुख महसूस कर रहे होंगे। सेम हियर, मैं जनवरी में मूव हुई फिनलैंड में। बहुत डार्क था, बहुत स्नो थी। आई हैव नेवर सीन अ लॉट ऑफ स्नो। मैं जिस एरिया में रहती हूं, देयर इज नो स्नो। जब मैंने देखा, एंड आई वाज फीलिंग दैट इट सीम्स दैट आई एम इन अ प्रिजन। All the time stayed inside. It was quite difficult for me. And ये चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा। लेकिन मैंने एक चीज सीखी। The moment when nobody around me, I learned to sit in the presence of God. ये दुख तो दे रहा था, ये तकलीफ तो दे रहा था, लेकिन आज आप में से शायद कुछ सोचते हो, शासिया के पास बहुत अच्छी जॉब है,
यस, यहां मैं काम करती हूँ, जहां पे मैं खड़ी हुई हूं, ये मेरा वर्क प्लेस है। लेकिन आप ये भी जान सकते हैं कि अगर पिछले 12 साल से मैं यहां हूं तो 12 साल मैंने कोई एंजॉय नहीं किया है। गेम्स को देखकर हम पेन्स का अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हम किसी की ग्लोरी को देखकर उसकी स्टोरी को नहीं जान सकते हैं। स्टोरी फर्क है, ग्लोरी फर्क है। जितना ज्यादा हम सब्र करेंगे उतना बड़ा मिरेकल मिलेगा। द ग्रेटर द पेशेंस, द ग्रेटर द मिरेकल। मेरा नाम भी वैसे शाजिया साबर है। साबर मीन पेशेंट है, सब्र है उसका मतलब। तो मैंने बहुत सब्र किया, 7-8 साल घर के अंदर रही, फिर उसके बाद स्टडीज की, स्टडीज के बाद फिर जॉब में आई। तो उस सारे वक्त में मैं जब स्ट्रगल कर रही थी, मेरा ईमान था कि एक वक्त आएगा जब मैं अपने इस विजन को, जो अभी हम ब्लेस्ड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, एक वक्त आएगा कि ये विजन जो है ये जरूर इसके बारे में लोग जानेंगे। इस पर काम होता रहा और उन 12 सालों में एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि जब मैंने खुदा से कहा हो कि खुदावन अभी तो मैं दुख उठा रही हूं, अभी मैं अकेली हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं चैलेंजेस में हूं, तू मेरे साथ नहीं है। खुदावन, मैं जानती थी खुदा मेरे साथ है। मैंने जब भी प्रार्थना की, जब भी दुआ की, मैं रोती थी खुदा की हुजूरी में। यू नो, समटाइम खुदा हमारी एक्सपेक्टेशन से हटकर हमारे लिए कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हम वेट नहीं करते हैं और हम जल्दी जल्दी उन चीजों को चाहते हैं। और हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू फोर्स गॉड एंड वी ट्राई टू फोर्स आवर सेल्फ एज वेल। हम फोर्स करते हैं और समटाइम मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो फोर्स बाय फोर्स बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में ले तो लेते हैं और वक्ती तौर पे उन्हें वो अच्छी भी लगती हैं, उनकी जिंदगी में उनको मजा भी आने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बाय फोर्स चीज ली गई, जो गलत रास्तों पर चलकर, गलत डिसीजंस को बनाकर, गलत बातों में आकर, गलत काम करके, जिसको कह लें कि करप्शन हो गई, झूठ हो गया, फ्रेब हो गया, उसके स्टेप्स पर हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर वो हमारी जिंदगी से पीस को छीन लेती है और हमारी जिंदगी में एंजाइटी और डिप्रेशन को इंस्टॉल कर देती है। That's why God says, wait upon the Lord. वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। Have faith in Him. खुदा पर भरोसा रखें। Yes, beyond your expectations, God is going to something greater in your life. और एक बात और हम सीखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो मान लीजिए कि खुदा वो आपको देना नहीं चाहता है। क्यों? माइट बी आप अपनी कॉलिंग को खराब कर लें। हो सकता है आप अपने फेथ को डिस्ट्रॉय कर लें, अपने ईमान को खराब कर लें। विश्वास चाहता रहे, इसलिए खुदा नहीं चाहता कि वो आपको वो चीज दे जो आप मांग रहे हैं। हम उसके बच्चे हैं, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या जरूरी है। समटाइम वो हमें सिखाता है जब तक कि हम मैच्योर ना हो जाए। हम अपने बच्चे को आग वाली चीज नहीं देंगे, ना हम कोई नाइफ देंगे उसे। हम जानते हैं कि ये अपने आप को नुकसान देगा
और जब वो मैच्योर, जब बड़ा हो जाता है, तब हम उसको खुद ऐसी चीजें सिखाते हैं और बताते हैं। तो समटाइम खुदा जब आपको कुछ नहीं दे रहा, जब आप मांग रहे हैं, तो मान लीजिए या तो आपका वक्त नहीं है, या फिर खुदा वो आपको देना नहीं चाहता है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरस वो आपको कुछ और अच्छा देना चाहता है, जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपकी जिंदगी के लिए बरकत को ले आए। समटाइम हमारा वक्त नहीं होता, समटाइम खुदा देना नहीं चाहता, और समटाइम ऐसा होता है कि मेरा टैलेंट इस जगह के लिए ठीक नहीं है, जो गिफ्ट मेरे पास है वो शायद इस जगह के लिए ठीक नहीं है। मान लें कि हर बीज जो होता है ना, वो हर जमीन के लिए ठीक नहीं होता। अगर मैं मैंगो का सीड यहां ला लूं, फिनलैंड में ले आऊं, या ऑरेंज का, मेरे कंट्री में तो ये बहुत होते हैं, तो अगर मैं इधर बो दूंगी, वो ग्रो नहीं करेगा। वो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। क्यों? यहां का वेदर वो नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं उसको वैसा मिलेगा। तो हो सकता है मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि माइट बी मेरा टैलेंट, मेरा गिफ्ट और वो चीज जो मैं यहां पर अप्लाई करना चाह रहा हूं, उसको मैं फोर्स भी कर लूं तो वो नहीं होगा। मैं जितनी मर्जी जोर लगा लूं, मैं फिनलैंड से आपको नहीं उगा सकती, एटलीस्ट। So I would encourage you to not force God, not force yourself even. सोचने की बात है, विश्वास मेरा कहां पर है? खुदा पर है। वो मुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा, वो देगा जो मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए फायदेमंद है। आज मुझे और आपको क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो मान लीजिए आप खुदा के हाथों में हैं, वो आपको बना रहा है, आपको सिखा रहा है। अब ऐसा कभी हो तो सकता नहीं है कि मुझे यहां की जुबान ना आती हो और मैं आते कहूं जी मैं यहां की वज़ीर आज़म बन जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और उस टाइम के साथ साथ मुझे डेडिकेशन चाहिए कि मुझे कितना अपने इस टास्क में, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना डेडिकेट होना पड़ेगा, मुझे कितने आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे ही मुझे फेथ के लेवल को क्रॉस करने के लिए कितने घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, कितने घंटे दुआ करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर मैं फेथ के उन स्टेप्स को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाऊंगी। और फिर मैं भी हबक्कुक में जो लिखा है कि चाहे अंजीर के दरख्त में फल न लगे, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा, मेरी लाइफ किधर को जा रही है, किधर को नहीं जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो भी मैं अपने खुदावन पर ईमान रखूंगी, उस पर यकीन रखूंगी कि वो मेरे साथ है। अगर खुदावन मेरे साथ है, अ डे विल कम कि मैं उन तमाम चीजों को जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूं, जिनके लिए मैं कह रही हूं, वो खुदावन मेरी जरूरत से बढ़कर, मेरी ख्वाहिश से बढ़कर और सबसे बढ़कर वो अपनी मर्जी से जो वो चाहता है कि मेरे लिए जरूरी हो, वो करेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस जमीन पर जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। हर एक काम खुदा की मर्जी से हो रहा है, और हमें क्या करना है? फेथ इन हिम, ट्रस्ट इन हिम। हमें
उस पर बने रहना है, हमें उस पर कायम रहना है। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं कि जिस व्यक्ति ने भी, जिस किसी ने भी खुदावंद पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, खुदावंद ने उसे सर बुलंद किया। पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। आज हमने कितनी बातें सीखी हैं फेथ के ताल्लुक से? खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपके साथ है। और फेथ में, ईमान में अपने आप से बातें कीजिए, ईमान को बोलिए, ईमान में बातें कीजिए, खुदावंद से बातें कीजिए। और एक वक्त आएगा कि आपका ईमान जो आप रखते हैं वही आपको वो कुछ दे देगा जो आपने मांगा है। इसके लिए देर तो हो सकती है, लेकिन खुदा कभी खामोश नहीं है। माने तो जब हम दुआ कर रहे होते हैं, ईमान पर दुआ कर रहे होते हैं, फेथ में होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, उस वक्त खुदा आराम नहीं कर रहा होता। अगर हमें जवाब नहीं मिला तो खुदा हम पर काम कर रहा होता है, ताकि सेम टाइम में खुदा हमें सिखाए, हमें बतलाए और हमारे ईमान को मजबूत करे, और वो हम पर भी काम कर रहा होता है। इसलिए जब देर हो जाए तो डोंट लूज हार्ट, बेदिल ना हो, ईमान में बने रहिए, ईमान पर खड़े रहिए। ये कभी हो नहीं सकता कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब ना दे। खुदा की मोहब्बत, खुदा पर ईमान, कोई चीज आपको इससे जुदा ना करे। कुछ भी हो जाए, बहरान हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, पौलुस रसूल कहता है, रोमियो के खत में 8वां चैप्टर है, उसमें वो कहता है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। वो कहता कुछ भी जुदा नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें फेथ पर खड़े रहना है, भरोसा हमें खुदा पर करना है। और अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे खुदा पर और फोर्स करेंगे अपने आप को, तो फिर शायद हम गलत डिसीजंस करें और बाद में वो मेरी और आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। और रास्तबाज जो है वो हमेशा ईमान से जीता है। किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी जिंदगी में राइट लेफ्ट में है, ईमान पर खड़े रहें। छोटी छोटी चीजों को तो हम पा लेते हैं, बड़ा ईमान, बड़ा विश्वास तब हमारे अंदर होता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उस पर ईमान रखते हैं। आए, अगर आज मेरे और आपके पास कुछ नहीं है तो भी वही बने रहिए विश्वास में, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको वो कुछ देगा जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो थिंग्स ऑलरेडी सेटल्ड इन स्पिरिचुअल रैलम्स। तो फिर उनको नीचे लाने के लिए, आपकी जिंदगी में उनको जो मैनिफेस्टेशन देखने के लिए जरूरी है कि आप प्रार्थना करते रहें। दानियल की एग्जाम्पल मैंने बहुत दफा आपको दी है। आप जानते हैं दानियल की दुआ वो कैसे थी। वो उसने 21 डेज तक जो है वो प्रार्थना की, जबकि उसकी प्रार्थना का उत्तर, उसकी दुआ का जवाब तो पहले दिन ही रिलीज हो गया था। लेकिन वो दुआ करता रहा जब तक कि उसका उत्तर ना मिल गया। आए हम ईमान पर बने रहें, जब तक हम देखना ना शुरू कर दें हम नहीं रुकेंगे। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम दुआ में जाएंगे। आप में से कोई भी प्रार्थना कर सकता है, कोई भी दुआ कर सकता है। प्लीज कम फॉरवर्ड।
हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं मालिक इस दिन के लिए, खुदा हम इस वक्त के लिए। ए खुदा तेरा कलाम जो हमने सुना है खुदा तेरी खात्मा से, खुदा ए खुदा दुआ करता हूँ कि ये कलाम है खुदा बंद बंद और दूधे दूधे में से गुजर जाए खुदा, और खुदा ये हमारी ज़िंदगी को तब्दील करें खुदा। इससे हम बहुत कुछ सीखें खुदा, इससे खुदा हम आगे बढ़ने की हम ए खुदा हिम्मत मिले हमें। ए खुदा कि तेरी मर्ज़ी का इंतज़ार करें, ना कि अपनी मर्ज़ी हर बात में खुदा रखें, बल्कि तेरी मर्ज़ी ढूंढें खुदा, तुझसे पूछें हैं खुदा कि तू क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, वही पूरा हो खुदा। मैं खुदा मैं दुआ करता हूँ कि जिस जिस घर में खुदा ये कलाम सुना गया है खुदा, तेरा पाक रूह वहाँ पे खुदा छू ले सबको, तेरा ज़ख्मी हाथ ए खुदा सबको छू ले खुदा, और ज़िंदगियाँ बदल जाएँ खुदा, वहाँ तक तेरी शिफा पहुँच जाए खुदा, वहाँ तक तेरी है खुदा ब्लेसिंग्स पहुँच जाए खुदा। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे के नाम से, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाई है, द लॉर्ड्स प्रेयर। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाकत और शराकत तब से लेके हम सब के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे।